Hello everyone. Hello students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So, in last video we have to discuss the first characteristics of living thing, that is growth. So, growth is very important for all living things. Okay. So, it is the most important characteristics of living thing. We have already discussed in last video. Okay. So, now children, today we are going to learn the remaining part of the growth and as well as the second characteristic, that is respiration. Okay, so children, today we are going to learn the remaining part of the growth and respiration. Okay, so food is necessary for growth. So हमारी growth होने के लिए food is very important to all living thing. Okay, so we consume food, so obviously growth is increases. Okay, so food is very important for all living things. For which purpose? For the growth. Okay, so food is necessary for growth. Okay, so this is the picture of photosynthesis process. So what is meant by photosynthesis? So plants produce food from water, then nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air. Okay, so this process takes place in the leaves of plant. Okay, so plants produce food from water, nutrients in the soil and the कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. देखो जो प्लांट है, सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स क्या होता है? What is meant by photosynthesis process? So plants get water from the soil. Plants absorb water from the soil and also get carbon dioxide from the air, and with the help of sunlight plant produce their own food. This process is known as photosynthesis process. So what is meant by photosynthesis process? Photosynthesis process means क्या होता है? So plants soil में से क्या लेते हैं? water absorb करते हैं, then air से carbon dioxide लेते हैं and सनलाइट लेते हैं, और ये तीनों की हेल्प से खुद का खाना खुद बनाते हैं. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in the leaves of plants. Okay, so this is the figure of photosynthesis process. Okay, so plants खुद का खाना खुद बनाते हैं. Always keep in mind, always remember that plants make their own food with the help of photosynthesis process. Okay, got it? So ये आपको हमेशा याद में रखना है. Okay, always keep in mind. Okay, so दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स. सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है? जो प्लांट्स की लीव्स है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. ओके, सो इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स. ओके, सो प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट होता है? उसके लीव्स में, प्लांट्स के लीव्स में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. Okay, so the chlorophyll pigment present in the leaves. Okay, then during this process plants give out now oxygen. So जब plants photosynthesis process perform करता है, वो कौन सी गैस एयर से लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और कौन सी गैस रिलीज करता है? प्लांट्स
get carbon dioxide from the air and release the oxygen gas. Which gas? Oxygen gas. So plants क्या करते हैं? Plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें प्लांट्स लगाने से ऑक्सीजन गैस मिलता है. ओके, सो प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन कलर ड्यू टू दी क्लोरोफिल इन देम. देखो, जो प्लांट्स के लीव्स है उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. ओके, सो लीव्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. इसीलिए जो प्लांट्स है वो कैसे दिखते हैं हमें? सो प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन कलर. ओके, सो प्लांट्स हमें क्यों ग्रीन कलर के दिखते हैं? बिकॉज द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव. ओके, सो दैट इज व्हाई plants appear mainly green in color due to the chlorophyll in there. Okay, understood? So every living things need the food. So all living things need the food for growth. Okay, so every animal has very important. So सभी ऑल लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है. फॉर विच पर्पज़? फॉर ग्रोथ. ओके, सो देन एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल. लेकिन जैसे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. ओके, सो प्लांट्स make their own food with the help of photosynthesis process, while animals however do not have chlorophyll. So animals के पास chlorophyll pigment present होता है क्या? No. So animals are totally depend on another organism. Okay, so ऐसे कुछ एनिमल्स है जो टोटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. ओके, सो द एनिमल्स आर टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स. सो प्लांट्स एनिमल्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्या? नो. सो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ गोट. सो गोट, शीप, हॉर्स ईट ग्रास. ओके, सो जो गोट है, देन शीप है और जो हॉर्स है, ये सभी एनिमल्स ईट द ग्रास. सो जो गोट है, देन जो शीप है एंड ऑल्सो दी हॉर्स ईट द ग्रास. सो ये सभी एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, हरी घास खाते हैं. ओके, ग्रास खाते हैं. वाइल wild animals such as tigers and lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. जो टाइगर है, देन लॉयन है, ये एनिमल क्या करते हैं? शिकार करते खुद की फूड की नीड को कंप्लीट करते हैं. मीन्स वो क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं. क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, शिकार करके खाते हैं. सो लॉयन एंड टाइगर आर टोटली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड फुलफिल देयर नीड बाय हंटिंग द अदर एनिमल्स. है कि नहीं? जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं वो एनिमल्स को कौन खाते हैं? टाइगर एंड लॉयन. है कि नहीं? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड food for fulfill their need of food. Okay, so all living things need food. So सभी living things को food की ज़रूरत होती है. Why? For growth purpose. क्योंकि उनकी ग्रोथ होने के लिए. So growth is the important characteristics of living thing. So on the basis of this we can say that the intake of food and the resultant growth is an important characteristics of living things. Okay, so in this way students understood
the characteristics of growth? Yes. Okay. Then next characteristics is the respiration. What is this? So first characteristics हमारी कौन सी थी? Growth. And second characteristic is the respiration. Okay. So second characteristics is respiration. Okay. So what is meant by respiration? In Hindi we can say श्वसन. Okay. So all living things need oxygen in order to live. So हमें all living things को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है. So what is the definition of respiration? What is meant by respiration? So respiration means क्या होता है? So inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. So what is meant by respiration? Respiration means क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना, हम क्या कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना. So this process is known as a respiration. It means that inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. So what is meant by respiration? Respiration means क्या होता है? Respiration means क्या होता है? What is meant by respiration? So ऑक्सीजन गैस को लेना और कौन से गैस को छोड़ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना. सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. ओके. सो एनिमल सच एज fish, snake, mouse, etc. have specific organs for respiration. So जो animals है, all living things need respiration. Okay. So सभी living things respiration ये process से जाते हैं. Means जैसे animals such as fish, snake, mouse, etc. have specific organs for respiration. जो animals है, कौन से एनिमल्स है? फिश, स्नेक, माउस, ये सभी लोग क्या करते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं. सो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है. सो फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन. ओके. सो ये सभी एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है. Okay. So on the other hand, plants respire by means of microscopic pores on their stems and leaves. Okay. So जो plants है, animals में तो respiration के लिए special organ होता है. वैसे ही likewise in same manner plants respire by means of microscopic pores on their stems and leaves. Okay. So जो plants है, plants भी respiration करते हैं. So उनमें एक special part होता है. So उनके stem, okay, उनके stem में, plant के stem में और leaves में microscopic pores होते हैं. क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं. लाइकवाइज ऐसे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं. उन पोर्स के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं. सो वी कैन नॉट सी दिस पोर्स ईजीली विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई. आप वो पोर्स को देख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं. वी कैन नॉट सी with the help of naked eye, we can see with the under a microscope. आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ही वो पोर्स देख सकते हो. सो पोर्स मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्स? पोर्स मीन्स जो होल होते हैं. ओके. सो जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो स्टेम और लीव्स है, उनमें पोर्स होते हैं, उनमें ही रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के केस में. ओके. इन plants perform their respiration process in the microscopic pores present on their stems and leaves. Okay. So plants कहाँ, कौन से पार्ट में respiration करते हैं? जो pores होते हैं स्टीम और
लीव्स में उसमें रेस्पिरेशन करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. हाँ, देन जो फिश है, सो फिश में क्या प्रेजेंट होते हैं? फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं. विच पार्ट प्रेजेंट? फिश में क्या प्रेजेंट होते हैं? सो दिस इज द स्ट्रक्चर नोन एज गिल्स. ओके, सो जो ये पार्ट है, सो दिस पार्ट इज नोन एज गिल्स. ओके, सो जो फिश है उनमें कौन सा बॉडी पार्ट होता है फिश का? गिल्स में. सो फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. सो फिश कौन से पार्ट से रेस्पिरेशन करता है? गिल्स से. ओके, सो एंड इन ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ नोज. ऑब्वियसली आपको तो पता ही है क्या, जो हम ह्यूमन बीइंग्स है वो कौन से बॉडी पार्ट से रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नोज, है कि नहीं? हम लोग नोज ये बॉडी पार्ट से ब्रीथिंग करते हैं. सो इन दिस वे, सो रेस्पिरेशन is a characteristics of living thing. So all living things need respiration. So respiration is a very important characteristics of living things. Okay, I hope you all are understand. Thank you.